اس وقت پاکستان کے ساتھ دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں. آج ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ قتل و غارت کر کے نہ صرف بلوچستان کے عوام کے خلاف جا رہے ہیں، بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ صریحاً دشمنی ہے. فتنہ الخوارج کے حوالے سے جو کاوشیں جاری ہیں اور جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، ہم حکومت 24 کروڑ عوام چاہیں بھی تو ان شہداء کا قرض نہیں اتار سکتے. یہ قربانیاں ان کی جتنی بھی تعظیم کی جائے وہ کم ہے. پاکستان کے خلاف محاذ آرائی ملک دشمنی ہے. بد امنی پھیلانے والے بلوچستان کے بھی خیر خواہ نہیں. ملک دشمن نہیں چاہتے گوادر بندرگاہ فعال ہو. گوادر ایئرپورٹ سے پاکستانی معیشت کو فائدہ ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس میں اظہار خیال. کہا فتنہ الخوارج کے خلاف قوم قربانی دے رہی ہے. امن کے لیے شہداء کا قرض تا قیامت نہیں اتار سکیں گے. پاکستان کے معاشی اشاریے خوش آئند ہیں. ورلڈ بینک کے طویل المدتی فریم ورک سے معیشت مستحکم ہوگی. آئی ٹی برآمدات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. بولے غزہ کے لیے امدادی سامان کے ٹرک بھجوائے. فلسطین کے لیے جو ہو سکا کریں گے. کیا ججز کمیٹی جوڈیشل آرڈر کے باوجود بینچ تبدیل کر سکتی ہے؟ سپریم کورٹ نے معاونت طلب کر لی. حامد خان اور منیر اے ملک عدالتی معاون مقرر. اختیار سماعت کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کا کیس. جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس. ججز کمیٹی کے کیس واپس لینے سے تو عدلیہ کی آزادی ختم ہو جائے گی. ایسا ہوتا رہا تو کل کوئی کیس اس وجہ سے واپس لے لیا جائے گا کہ حکومت کے خلاف فیصلہ ہونے لگا ہے. غلطی ہوئی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا ڈیزائن ہے. رجسٹرار سپریم کورٹ نے پیش ہو کر بینچ کو بتایا کہ یہ کیس آئینی بینچ کا تھا، غلطی سے ریگولر بینچ میں لگ گیا تھا. جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ یہ غلطی تو عرصے سے جاری تھی، اب ادراک کیسے ہوا؟ معذرت کے ساتھ غلطی صرف اس بینچ میں مجھے شامل کرنا تھی. جسٹس منصور نے کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اس معاملے پر اجلاس کیسے ہوا؟ کیا کمیٹی نے خود اجلاس بلایا یا آپ نے درخواست کی؟ رجسٹرار نے بتایا کہ ہم نے کمیٹی کو نوٹ لکھا تھا. چیف جسٹس منصور نے کہا کہ جب جوڈیشل آرڈر موجود تھا تو نوٹ کیوں لکھا گیا؟ ہمیں وہ نوٹ دکھائے. رجسٹرار نے کمیٹی کو بھیجا گیا نوٹ پیش کر دیا. جسٹس منصور نے کہا اس نوٹ میں غلطی کا ادراک تو نہیں کیا گیا. رجسٹرار نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت ججز کمیٹی عدالتی بینچ سے کیس واپس لے سکتی ہے. جسٹس عقیل عباسی نے کہا چلے اچھا ہے، اس کیس کے بہانے کیسز تو لگنا شروع ہو گئے. چیف جسٹس اور آئینی بینچ کے سربراہ کو بینچ اختیارات سے متعلق خط. ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے خط لکھا. خط میں کہا گیا کیس فکس نہ کرنا جوڈیشل آرڈر نہ ماننے کے مترادف ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے معاملے کو توہین عدالت قرار دیا. کمیٹی پہلے والا بینچ تشکیل دے کر 20 جنوری کو سماعت مقرر کر سکتی تھی. جو فارن کنٹریز ہیں ان کے ساتھ آپ کوئی حکمن کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ہماری طرف سے یہ اگلے مہینے 2 میں ہو جائے گا، لیکن الٹیمیٹ جو ہونا ہے سر سارا معاملہ ہے وہ اسٹیٹ آف جرمنی نے کرنا ہے. ظاہر ہے وہ دوسرے اینڈ پہ ہیں تو اس حوالے سے ٹائم فریم نہیں. جو پاکستانی سائڈ پہ ہونے والی چیزیں ہیں 2 بڑے ایکشنز تو ہم نے کر دیے. جو ہمارا ڈیول نیشنلٹی کا میکنزم چل رہا ہے وہ 22 ممالک کے ساتھ ہے. حکومت کسی ادارے کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتی. عدلیہ بھی ایگزیکٹو کے معاملات میں براہ راست مداخلت سے گریز کرے. وزیر قانون اعظم نذیر طارر کا سینٹ میں اظہار خیال. کہا پاکستان نے جرمنی کے ساتھ دوہری شہریت کی منظوری دے دی ہے. پاکستانی شہریت ترک کرنے والے دوبارہ شہریت حاصل کر سکیں گے. قومی کمیشن برائے وقار نسواں ترمیمی بل 2025 سینٹ سے منظور. سینیٹر علی ظفر کا قانون کو کمیٹی کے پاس لے جانے کا مشورہ. شبلی فراز نے کہا کیا یہ رول ہے کہ اسمبلی سے پاس ہونے والا بل سینٹ سے لازمی پاس ہوگا؟ ملک میں انتہائی جلد بازی سے قانون سازی ہوتی ہے. یہاں نیچے کے سارے ڈیلٹا کے علاقے جتنے بھی ہیں ویسے ہی قحط سالی کا شکار ہیں سالوں سے. دے آر ڈراؤٹ ریڈن، آفن فیمن ریڈن، جہاں لائف سٹاک کچھ نہیں کر سکتی، جہاں کچھ اگ نہیں سکتا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنا آپ 7 ملین ایکڑ کس طرح زرخیز بنانا جائیں گے جب آلریڈی پانی ہے نہیں آپ کے سسٹم میں. سندھ میں پانی ہی نہیں زمینیں بنجر ہو رہی ہیں. کراچی میں پانی کی چھینا جھپٹی ہوتی ہے. پی پی سینیٹر شیر رحمان کا سینٹ میں اظہار خیال.
कहा दरियाई सिंध से चोलिस्तान को सैराब करने के लिए नहरें निकाली जा रही हैं। सिंध में पूछें 7 मिलियन एकड़ अराजी को जरखेज कैसे बनाएंगे। जो भी मजबूरियां हैं हमारे साथ शेयर करें, हम भी पाकिस्तानी हैं। मामला CCI में लाया जाए। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का फार्मूला तय है। सिंध को पंजाब की नहरों पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। पंजाब ने अपने हिस्से के पानी की नहरें निकाली। पीपल्स पार्टी के एतराज़, हुकूमत का जवाब। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा किसी का हक मारना जायज़ नहीं। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिसको रोका जाए। पानी का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। बैरिस्टर गौहर ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन की आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा हमने आइन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। पार्टी सर्टिफिकेट हमारा आइनी और कानूनी हक है। तहरीक इंसाफ का निशान बानी PTI हैं। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए खतूत लिख दिए। अकबर एस बाबर ने कहा PTI अकाउंट्स का ऑडिट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन फैसले तक PTI के अकाउंट्स मुंजमद करे। डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल बाद व्हाइट हाउस में फिर वापसी। 47वें अमरीकी सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। अमरीकी चीफ जस्टिस ने हल्फ लिया। तोपों की सलामी दी गई। सदारत संभालते ही ट्रंप के बड़े फैसले। जो बाइडन के 78 सदारती इक़दामात मनसूख। मुतअद्दिद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। कैपिटल हमले में मुलविस 1500 अफराद को माफ़ी दे दी। वफाकी भर्तियाँ रोकने के हुक्मनामे पर दस्तखत। मुलाजमीन के लिए घर से काम करने की सहूलत खत्म। मसनूई ज़हानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी मनसूख। इलेक्ट्रिक कारों की फरोख का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी खत्म। आलमी इदारा सेहत से अलहदा होने के ऑर्डर पर भी दस्तखत। गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भेजने का ऐलान। जनूबी सरहदों पर कौमी इमरजेंसी नाफिज करने का कह दिया गया। कार्टल्स को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी सरजमीन के नीचे मौजूद तेल और गैस के ज़खायर निकालने का ऐलान। ट्रंप फाइलों पर दस्तखत करके हाजिरीन को दिखाते रहे। सदर बनने के बाद अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पहला पैगाम। बाइडन दौर के 4 ओहदेदार बरतरफ। सबसे पहले अमेरिका। ट्रंप ने खारिजा पॉलिसी वाज़ेह कर दी। कहा हम अपने खुद मुख्तारी दोबारा हासिल करेंगे। अमेरिका से सियासी इस्टेब्लिशमेंट का कब्जा ख़त्म करेंगे। पहले खिताब में कहा अमेरिका का जवाल ख़त्म और सुनहरी दौर शुरू हो गया। आज हमारी कौम के लिए आज़ादी का दिन है। साबिक हुकूमतें दाखिली मसाइल हल न कर सकीं, लेकिन दुनिया भर में महकी महमात करती रहीं। दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ अमरीकी फ़ौज इस्तेमाल करेंगे। महंगाई नीचे लाने के लिए हंगामी इक़दाम होंगे। सियासी मुखालिफिन से इंतकाम खत्म करने का ऐलान। कहा 8 साल मुझे जिन मुश्किलात का सामना रहा, अमरीकी तारीख में किसी और के साथ ऐसा नहीं हुआ। रंग और नस्ल की बुनियाद पर इम्तियाज खत्म कर देंगे। ट्रंप का तमाम सरकारी सेंसरशिप खत्म करने का ऐलान। आज़ाद इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी बहाल करने का वादा। सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर ले आएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सऊदी अरब भी बिलाखिर इब्राहिम मुआहदे में शामिल हो जाएगा। बोले गजा जंगबंदी मुआहदे से मुतमईन नहीं। मगरबी किनारे में इसराइली गैर कानूनी आबादकारियों से मुतालिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी वापस ले लिया। ट्रंप ने कहा जितनी जल्द हो सके यूक्रेन जंग को खत्म करने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन के सदर डील करना चाहते हैं। सदर पुतिन डील ना करके रूस को तबाह कर रहे हैं। रूसी सदर से मुलाकात करूंगा, नहीं जानता ये मुलाकात कब होगी। खलीज मैक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमरीका रखने का भी ऐलान। बोले हम पैनामा कैनाल वापस लेंगे। यूक्रेन जंग रोकने से मुतालिक अमरीकी सदर के बयानात देखे हैं। नई अमरीकी इंतजामिया के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। रूसी सदर पुतिन की ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इज़हार। ट्रंप की टैक्स पॉलिसी पर यूरोपीय यूनियन ने कहा कि इक्तसादी मफादात के दिफा की ज़रूरत पड़ी तो हम तैयार हैं। तजारती तनाज़े की कीमत अमरीका समेत सबको चुकाना होगी। सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका। ट्रंप की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत। वाशिंगटन में अमरीकी सैनिटर्स, कांग्रेस अरकान और अहम शख्सियात से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। लिंकन लिबर्टी हॉल में इशाइया तकरीब में भी शिरकत।
लॉयर कुरम में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ दूसरे रोज भी जारी। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक बगन और मुलहका पहाड़ों में ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इमदादी ट्रक ना पहुँचने से इलाके में अशिया खुरनोश और अद्वियात की किल्लत। पंजाब में अपनी नौयत की पहली बड़ी कारोबार फाइनेंस स्कीम का इजरा। वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार स्कीम के लिए 84 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस 10 लाख से 3 करोड़ रुपए के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। कर्ज 5 साल की आसान किस्तों में वापस किया जाएगा। 25 से 50 साल तक के अफराद अप्लाई कर सकते हैं। एक्टिव फाइलर होना, किसी भी मालियाती इदारे का डिफॉल्टर ना होना, अहलियत करार। मरियम नवाज ने कहा कि तालीम के बाद रोजगार के मौके फराहम करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। लाहौर में इसी माह 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। मुस्तहकीन को इस बार रमजान निगहबान पैकेज कार्ड्स की शक्ल में मिलेगा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। 1000 एकड़ पर झींगा फार्मिंग मंसूबे की मैपिंग मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, लाहौर में क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनने से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आएगी। वज़ीर आला सिंध के सरकारी दफातर और पुलिस स्टेशन के दौरे अदम हाजिरी पर एसी माड़ीपुर यासीन अब्बासी मुअत्तल। एसी रेवेन्यू नवाज खलोड़ो को भी मुअत्तल करने की हिदायत। सब रजिस्ट्रार गडाब 2 के फौरी तबादले की हिदायत। पाक फ़ज़ाइया का दस्ता सऊदी अरब पहुंच गया। कसीरुल मुल्क की फ़ज़ाई जंगी मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री में हिस्सा लेगा। ISPR के मुताबिक JF-17 थंडर तैयारों पर मुश्तमिल दस्ते में फ़ज़ाई और ज़मीनी अमला भी शामिल। दौरान परवाज़ फ़ज़ा में ईंधन भी भरा गया। सिंध में वाइस चांसलर्स और असातिज़ा भर्ती का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। सूबे की सरकारी जामियात में तदरीसी अमल चौथे रोज भी मुअत्तल। मुतालबात तस्लीम ना हुए तो बाइकाट को दौरानिया बढ़ा दिया जाएगा। वासा की धमकी। गजा में इसराइल हमास जंगबंदी का तीसरा रोज बेघर फलस्तीनियों की अपने इलाकों में वापसी जारी। इमदादी सामान के ट्रक भी गजा पहुंच रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सारा शरीफ कत्ल केस में पेशरफ्त। सोलिसिटर जनरल का इरफान शरीफ की सजा में इजाफे के लिए अदालत से रुजू। सारा को नाकाबिले तसव्वुर दर्द, परेशानी और बेचैनी से गुजरना पड़ा। इरफान शरीफ को गैर मामूली तौर पर नरम सजा सुनाई गई। ट्रंप ने टिकटॉक से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टिकटॉक को खरीदने या बंद करने का इख्तियार देता है। ट्रंप ने कहा, टिकटॉक से मुतालिक डील कर भी सकता हूं और नहीं भी। डील की तो 50% मलकियत हासिल करना होगी। चीन ने तौसीक ना की तो चीन पर टैरिफ आयद कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल को टिकटॉक पर कोई कार्रवाई ना करने का हुक्म। ट्रंप का अनोखा इक़दाम, अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करती अहलिया मेलेनिया ने भी अपना डिजिटल सिक्का जारी किया। ट्रंप डॉलर की मार्केट वैल्यू 12 अरब डॉलर, मेलेनिया डॉलर की वैल्यू 1.7 अरब डॉलर है। ट्रंप के चाहने वालों ने धड़ाधड़ करेंसी खरीदना शुरू कर दी। ट्रंप ने कहा, ये इनकी ऑफिशियल मीम है। हर उस चीज़ का जश्न मनाने का वक्त है जिसके लिए हम खड़े हैं। चैंपियंस ट्रॉफी कौन कौन खेलेगा? कौमी टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के। मुशावरत मुकम्मल। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सलमान आगा, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर शामिल। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, सुफियान मुकीम भी हिस्सा। इरफान खान, फ़खर जमान, मोहम्मद हुसैन, हसीबुल्लाह और इमामुल हक भी शामिल। अनफिट साइम अयूब के मुस्तकबिल का फैसला आइंदा हफ्ते मुतवक्के। सर्जरी नहीं होगी, रिहैब में मजीद वक्त लग सकता है। उधर मेगा इवेंट से कबल प्रोटीज और कीवीज पाकिस्तान में सहफरी की सीरीज खेलेंगे। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें 4 और 5 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। सहमुल की सीरीज के मैचेस लाहौर और कराची में होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत की नया तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश। भारतीय बोर्ड का टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम छापने से इनकार। पीसीबी ज़राए का कहना है, आईसीसी कवानीन के तहत मेज़बान मुल्क का नाम इवेंट की जर्सी पर दर्ज होता है। लोगो जर्सी पर लगवाना भी आईसीसी की जिम्मेदारी है। सुनील गावस्कर के बाद श्रीलंकन क्रिकेटर ने भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। डुसन शनाका कहते हैं कि मुतवाज़न पाकिस्तानी टीम को होम कंडीशंस का फ़ायदा होगा। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वेबसाइट क्रिकेट पाकिस्तान को इंटरव्यू में कहा कि फ़खर जमान में बला की सलाहियतें मौजूद हैं।